गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो अभी टाइम हो रहा है 9:10 और प्री ओपन मार्केट के प्राइसेस आ चुके हैं। सो मार्केट इज़ ओपनिंग अराउंड 16,151। सो बेसिकली 100 पॉइंट गैप अप और मेरा ये पोजीशन ओपन है। दिस इज़ अ नेकेड ऑप्शन। सो आई वाज अफ्रेड कि SGX निफ्टी तो 16,200 के ऊपर दिखा रहा था निफ्टी को, बट ठीक है, अभी ये 151 के आसपास है। आई क्लोज दिस पोजीशन इमीडिएटली। जो भी लॉस होगा, लॉस लेके मैं को निकल जाऊंगा। आई वोंट कीप इट ओपन। सो मार्केट्स आर अबाउट टू ओपन, आई जस्ट वेट। सो 9:11 हो रहा है, अभी 4 मिनट में ओपन होगा। आई एम गेसिंग, आई थिंक अराउंड 5,000 के आसपास का लॉस होगा इसमें। सो 3,500 तो उस दिन बना था, सो बेसिकली 1,500 का नेट लॉस हो जाएगा और बाकी 920 पे तो आज का मैं स्टार्टेड प्लेस करूँगा ही। ओके, so that's about this position. Now at least I'm happy I'm not going to pay a very big price, considering कि markets 250 200 220 के ticks भी आए थे, not ticks but yes SGX तो दिखा रहा था, इतना ट्रेड कर रहा था। so I'll just show you SGX कहाँ पे ट्रेड कर रहा था अभी। so 16,199 दिखा रहा है, बट मॉर्निंग में मैंने चेक किया था 215 210 ऐसे कुछ था। ठीक है, ओके। सो आई विल सी यू एट द मार्केट ओपन एंड आई विल अपडेट यू अबाउट द पोजीशन। ओके, सो अराउंड 10 seconds to market open. Let's see at what prices we are able to exit this call. It's very expensive. I don't think I will get better prices. Maybe I need to exit because if it goes up sharply, then I will take a very big loss. Now let's close this. Yes. So the net loss is, so this is what happens if you keep your naked options open and not close those in time. So this is the net loss, because 3,500 I gained on Friday on the put leg and 9,000 I lost now on the call leg, and since the market kept going up I have closed the position because I don't think it's falling, not soon enough, if at all it is falling. So I'll see you at 9:20 when I place my straddle. Okay, so going to place the straddle now. Two lots today. So market is around 16,200. I'll convert this to normal. I don't want to make the same mistake again. Sorry, convert this to MIS. Okay. So 50%. 149. $168. Okay. So most likely I might exit both the legs in case any stop losses hit, because the gap is quite high and I can take a loss, very big loss. Already I have taken a loss, so I'll see. So that's about the straddle. It is placed. So you can see the main loss has come from this leg only. I gained in the put leg only 3,500 rupees. I was guessing that it will be around 150. Sorry, not 150, 170, 180. But the intrinsic value is quite high. Sorry, not the intrinsic, the extrinsic value. Okay. So that's about it. I'll see you in the evening after the trade is completed. Okay. Good evening everyone. So आपने मुझे अभी थोड़ी देर पहले कॉल का जो लेग था पुराना उसको एग्जिट करते हुए देखा। बेसिकली जो गलती से मैं फ्राइडे को एग्जिट नहीं कर पाया था एंड उससे पहले मार्केट क्लोज हो गया था और मॉर्निंग में आपने देखा होगा मेरे को एग्जिट करते हुए। सही, जस्ट मैं शो कर देता हूँ पोजीशंस में।
सो बेसिकली ये 16,000 का कॉल था, सो इसमें 9,000 रुपीज़ का लॉस बुक हुआ बिकॉज ऑफ दैट। लॉस देखा जाए तो 7,000 रुपीज़ का ही है, क्योंकि स्टैडल जब प्लेस किया था उस दिन उसमें 2,000 का तो लॉस था ही उसी दिन, और जो दूसरा पुट का लेग था उसमें 3,500 का गेन था। सो 1,400 का प्रॉफिट था शायद उस दिन। सो नेट लॉस इज अराउंड 7,000 रुपीज़ ओनली, बट दैट हैज़ हैपन्ड बिकॉज ऑफ माई कंप्लीट स्टूपिडिटी, जो फ्राइडे को मैंने लास्ट मोमेंट तक पकड़ के रखा और एग्जिट नहीं किया, एंड बिकॉज ऑफ दैट this has cost me. It's like the market punishing you for your carelessness. That's what it is. Okay, so I hope you don't make the same mistake. और during morning you might have seen कि जब मैं exit करने का try कर रहा था, so I was looking at the market and deciding that if it goes down then I may exit at a lower price. और उसमें एक mistake भी किया मैंने। Originally मैंने एक GTT ऑर्डर प्लेस किया हुआ था। बेसिकली इन केस वो ट्रिगर होता तो 200 रुपीज़ पे मैंने प्लेस किया था, और मोस्ट लाइकली वो एग्जीक्यूट हो जाता। सो आई थिंक 26 पॉइंट्स कुड हैव बीन सेव्ड, मे बी नॉट, हू नोस, आई एम जस्ट गेसिंग, क्योंकि इसमें जो प्राइस दिख रहा है मेरे को ओपन पे अराउंड 180 है। सो मे बी ड्यूरिंग दिस कैंडल इन केस वो GTT ऑर्डर हिट होता, सो या दिस पर्टिकुलर कैंडल, सो इसमें आप देख सकते हैं ओपन 181 पे है, हाई 231 पे, तो अच्छा चांस था कि वो 50 पॉइंट का जो रेंज है उसमें 220 पॉइंट्स पे वो निकल सकता था पोजीशन, पर ठीक है नहीं निकल पाया। सो बेसिकली इस लेग में लॉस हुआ है अच्छा खासा। और बाकी ये 919 पे अपना ओरिजिनल स्ट्रैडल है जो मैं करता ही हूँ डेली, और पूरा दिन ये पोजीशन ग्रीन में ही था ऑलमोस्ट, पर पॉइंट्स अभी देखा जाए तो डीके कुछ हो ही नहीं रहा है, अब होगा भी नहीं। उसका रीज़न है कि प्रीमियम्स ऑलरेडी बहुत कम है, 100 रुपीज़ का प्रीमियम है ऑलमोस्ट। सो आई मीन देर इज़, और देख रहे हैं आप ये कॉल का जो लेग है 99 से 148 गया, और पुट का लेग जब एग्जिट हो रहा था मैं तब 112 से 163 आया। ठीक है, ये ऑलमोस्ट 50% गिरा ज़रूर है, बट उसका मतलब इतना ज़्यादा नहीं हो पाया कि ये गेन हो पाता। सो बेसिकली देखा जाए तो प्रीमियम्स डिके नहीं हो रहे हैं। आई मीन आई डोंट नो, मे बी, और जिस तरह का गेन पहले हो जाता था, जैसे अगर स्टैडल का स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है और मार्केट रेंज में घूम रहा है, सो अराउंड 1 o'clock तक 1% आने का चांसेस होता था, अच्छा चांसेस होता था, बट अभी नहीं हो पा रहा है वो। ओके, सो ये हो गया स्टैडल। सो स्टैडल में तो कुछ नहीं, मैं आपको दिखा देता हूँ, ब्रेक इवन क्लोज हुआ है। सो ये तो 9,000 रुपीज़ का लॉस जो बुक किया वो है। इसके अलावा जो ये एट द मनी का मैंने कॉल पुट सेल मारा था 16,200 का 919 पे, जो अपना ओरिजिनल स्टैडल में डेली करता हूँ विद 50% स्टॉप लॉस। सो इसमें कॉल में हिट हुआ स्टॉप लॉस, और पुट कोई खास गेन दे नहीं पाया जब तक मैं एग्जिट किया। सो मेरा एग्जिट अराउंड 314, वही 320 के जस्ट 5 मिनट पहले एग्जिट मार दिया मैंने। सो इसमें कोई खास गेन हुआ नहीं है, और इसमें लॉस तो बेसिकली ये 0-0 हो गया, ब्रेक इवन। ठीक है, ये तो नॉर्मल स्टैडल है, इसमें कोई एक्स्ट्रॉर्डनरी चीज़ नहीं। और आप देख रहे हैं मैं नॉर्मल ऑर्डर प्लेस किया था, और अपने अगर मेरे को दिखा हुआ ऑर्डर प्लेस करते हुए, सो आई कन्वर्टेड दिस टू MIS, और इंटरडे ट्रेडिंग में कर रहा हूँ, सो आई विल यूज़ ओनली MIS प्रोडक्ट्स, ताकि गलती से भी वो कैरी ओवर ना हो, जो कि मेरे साथ फ्राइडे को हुआ, और एंड आई पेड अ प्राइस फॉर दैट। एंड यू कैन सी कि इफ़ यू आर केयरलेस and you have to take this seriously, at least this kind of mistakes should be avoidable। बट ठीक है, आप जब रियल में करेंगे तो ऐसे चांसेस होते हैं इस तरह की चीज़ें होने का, एग्जीक्यूशन मिस्टेक्स बोल लीजिए, हल्का फुल्का केयरलेसनेस बोल लीजिए, whatever happens, but the market is not going to spare you, you will be punished every single time। sometimes you may get lucky, पर फिर वो और गलत होगा। इसमें क्या है कि आप ये गलती रिपीट नहीं करेंगे, बट अगर आपको प्रॉफिट हो जाएगा देन यू विल मे थिंक कि चलो मैं कैरी कर लेता हूँ दोबारा, बट लॉजिक होना चाहिए। इन केस यू आर डूइंग दिस देन यू शुड हैव अ लॉजिक। मेरा लॉजिक तो था ही नहीं, मेरे को तो इंटरडे में निकलना था। ओके, सो ये हो गया पुराना लेग का, ये हो गया स्ट्रैडल। इसके अलावा इन केस यू हैव फॉलोड मी देन आपको मालूम होगा मैंने करेंसी का भी एक पोजीशन लेके रखा है USD INR में, और ये जो पुट था 79.75 का, ये मैंने निकाल दिया। उसका रीज़न था निकालने का क्योंकि कॉल का जो लेग है उसका प्रीमियम काफ़ी इंक्रीज़ हो रहा था, और ये अब इसको काउंटर नहीं कर पाता।
सो इसलिए मैंने 80 का जो एट द मनी का पुट है वो सेल कर दिया अभी. So basically this has now become a, what do we call this, if you know then you know, that's what we call as iron butterfly. So अभी इसका मैक्स प्रॉफिट 12,000 के आसपास है और मैक्स लॉस भी अराउंड उतना ही है, ऑलमोस्ट इक्वल है. और 79.75 लोअर साइड में ब्रेक इवन है, 80.31 अपर साइड में ब्रेक इवन है. सो अगर ये इस रेंज में घूम के बंद हो गया देन वी विल गेट प्रॉफिट, अदरवाइज आई विल अगेन हैव टू शिफ्ट. तो मेरा प्लानिंग तो यही है, इनके स्पोर्ट में फिर से लॉस होता है, सॉरी USD का अगर प्राइस बढ़ता रहता है ऐसे ही, तो मैं दूसरा ये जो पुट मैंने नया डाला है बेसिकली 80 पे, सो इसको मैं क्या करूँगा, इसको भी निकाल दूँगा. सो 80 का ये जो पुट है इसमें प्रॉफिट होगा, इसको मैं निकाल दूँगा और फिर इन द मनी का पुट सेल मार दूँगा. नाउ यू माइट बी सेइंग व्हाई आई एम डूइंग दैट. वो बेसिकली इन्वर्टेड स्ट्रैंगल बन जाएगा और कुछ नहीं, स्ट्रैंगल ही है बट इन द मनी स्ट्रैंगल है. सो आई जस्ट शो यू. सपोज मैंने ये पुट निकाल दिया, ये 80 का पुट, और इसका जो ये प्रोटेक्शन बाई किया था वो भी निकाल दिया. नाउ दिस इज़ अवर नॉर्मल बियर कॉल स्प्रेड जिसको बोलते हैं हम. सो इसमें आपका ब्रेक इवन 80.12 है. सो यू आर थिंकिंग कि 80.12 के नीचे अगर रहेगा देन यू विल गेट प्रॉफिट, 80.12 के ऊपर जाएगा तो आपका लॉस होगा. नाउ मेरा क्या रहेगा अगर इन केस ये और ऊपर जाता है, सपोज ये अभी 80.01 है, सपोज 80.1 आ गया, देन आपका कॉल का प्रीमियम काफ़ी इंक्रीज़ हो जाएगा और फिर उसमें लॉस होगा. सो बट मीनवाइल मैंने पुट सेल तो किया ही हुआ है, मैं अभी तो पुट निकाल नहीं रहा हूँ 80 का. जब इसका प्रीमियम काफ़ी गिर जाएगा, बेसिकली जितना इसमें लॉस हो रहा है उतना तक तो आ ही जाएगा एटलीस्ट, देन आई विल क्लोज दैट पोजीशन और देन मैं इधर कहीं पे सेल मार दूंगा एक और. ठीक है, अभी ये लॉट मैच करना पड़ेगा. सो दिस इज़ 40 लॉट्स. Okay, what it has become. 1 minute. Let's do these two. I think I made some mistake. Let's reset this. Okay, something like this. तो ऐसा कुछ दिखेगा आपको जब आप इन्वर्टेड स्ट्रैंगल बनाएंगे. ठीक है, तब आपका ब्रेक इवन को चेंज हो जाएगा. बट अभी मैं कर क्यों रहा हूँ, बेसिकली आई एम जस्ट ट्राइंग टू कैप्चर द प्रीमियम्स बिफोर द इंट्रिंसिक वैल्यू कम्स. सो अभी जितना भी प्रीमियम्स के अंदर में एक्सट्रिंसिक वैल्यू है, एक्सट्रिंसिक वैल्यू का मतलब है, इफ़ यू नो अबाउट ऑप्शन देन आई थिंक यू वुड अंडरस्टैंड कि सपोज ये 80 का कॉल है, अभी इसका प्रीमियम आप देख रहे हैं 0.2550 है और रियल में इसका वैल्यू कितना होना चाहिए ये ऑप्शन का. इन द मनी है ये बट 0.06 इन द मनी है. So this should be priced at 0.06 only, not 0.2550. So this is what I mean. So अभी इसमें काफ़ी एक्सट्रिंसिक वैल्यू है जो कि निकल जाएगी. So that's what I'm talking about कि मैं स्ट्रैंगल भी इसीलिए करता हूँ क्योंकि मैं फॉलो कर रहा हूँ बेसिकली प्रीमियम इंक्रीज को. And this is an experiment only. If you're trading this, then trade with caution. Okay, so net loss booked for the day is 9,198. along with some minor profit in this. So net loss for the day is 8,400 and the main reason is this particular call leg. ये mistake जो किया है उसकी वजह से हुआ है mainly. Okay, so I hope you are learning from my mistakes also and I hope you don't repeat the same and that's it I guess. और I think there is nothing else to say about today's positions. So you can see कि आज ठीक है, नेट ये रियलाइज नहीं है, रियलाइज्ड इज दिस मच ओनली 8,400. ओके, सो दैट्स अबाउट इट. इन केस आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर देना एंड इफ़ यू आर न्यू प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल. मैं इस तरह रोज़ अपने डेली के ट्रेड शेयर कर रहा हूँ. मेरा मिस्टेक्स भी आप देख सकते हैं, कुछ सही होता तो वो भी देख सकते हैं. और यू कैन फॉलो द स्ट्रैडल तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट देता रहा है. आज ब्रेक इवन रहा है हालांकि. इवन दो अगर मैं इसको लास्ट तक रखता तो शायद ये ग्रीन आ जाता. यू कैन सी कि ये 185 नेगेटिव है, मे बी 200-300 प्रॉफिट होता, बट एनीवेज ब्रेक इवन इन एनी केस. सो ओके, सो आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. गुड बाय एंड टेक केयर.